ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 5 سے ضمیر علی بدایونی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے ادب میں وجودیت کی تحریک سماعت فرمائیے۔ البرٹ کامیو نے اس محملیت اور بے معنویت کا اظہار اپنے مشہور ناول اجنبی میں کیا ہے، جو ہمارے سامنے ایک وجودی صورتحال پیش کرتا ہے جس میں ایک شخص دھوپ کو قتل کی وجہ بتلاتا ہے، اور اس کا یہ اقدام ہمیں بے معنویت کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے، چونکہ جب کائنات بے معنی اور زندگی محمل ہے تو انسان ہر کام کے لیے آزاد ہے۔ وہ کسی نظام، اخلاق اور حسن معاشرت کا پابند نہیں، وہ شاعر کے لفظوں میں خود کو مخاطب کرنے میں آزاد ہے۔ گلگنائے عارض ہے نہ ہے رنگے ہنا تو، اے خون شدہ دل تو کسی کام نہ آیا۔ وجودی ادب انسان کے اسی شعور بے معنویت سے جنم لیتا ہے۔ وہ حقیقت کا کسی طرح ادراک نہیں کر سکتا، وہ اچانک ایک دن پیدا ہوتا ہے اور اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فاکنر کے لفظوں میں انسان جنس کے دروازے سے داخل ہوتا ہے اور موت کے دروازے سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مفرور قیدی کی طرح زندگی بھر پناہ گاہیں تلاش کرتا رہتا ہے اور بالآخر موت اس کی آخری پناہ گاہ ثابت ہوتی ہے۔ ہر فرد کی زندگی کا انجام یکساں ہے۔ اپنے انجام کی یکسانیت سے آج کا انسان تھک چکا ہے۔ یہ انجام خوفناک بھی ہے اور بے معنی بھی۔ زندگی بھر کی جد و جہد کے بعد وہ اپنی ایک انفرادیت پیدا کرتا ہے، لیکن انجام کی یکسانیت اسے بے معنی و محمل بنا دیتی ہے۔ اس کی ساری جد و جہد ایک صفر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ صفر ہمیں ڈراتا ہے اور ہماری فردیت کو زوال سے آشنا کرتا ہے۔ یہ صفر وجودی ادب کا ایک اہم موضوع ہے۔ اپنے انجام کی یکسانیت کا شعور اپنا اظہار وجودی ادیبوں کی تخلیقات میں کرتا ہے۔ وجودی فلسفے کی داستان بے حد طویل اور پیچیدہ ہے، اس لیے تفصیلات میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ وجودی فلسفے کو سمجھنے کا ایک ذریعہ وجودی ادب بھی ہے، لیکن وجودی ادب بجائے خود کیا ہے؟ کیا یہ ادب سے مختلف کوئی ذریعہ اظہار ہے یا ادب ہی کے ایک طرز اظہار کا نام وجودی ادب ہے؟ وجودی ادب کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ دوستویفسکی سے لے کر ٹالسٹائی، رلکے، کافکا، سارتر، البرٹ کامیو، ہیمنگوے اور رینے شار تک پھیلا ہوا ہے۔ ہیڈگر نے جرمن شاعر ہولڈرلینڈ کو بھی وجودی شاعر کا مقام عطا کیا ہے۔ وجودی فکر اور وجودی ادب دونوں کا مرکز ژان پال سارتر اور اس کا فلسفہ اور اس کی ادبی تخلیقات ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے سارتر کی کہانی دیوار کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ وجودی ادب کے مرکزی رجحان کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ اس کہانی میں چند قیدیوں کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے اور وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں موت کا سامنا ہے۔ رات کے کچھ گھنٹے ان کے اور موت کے درمیان ایک فاصلے کی شکل میں موجود ہیں۔ دیوار کے ایک طرف خوفزدہ زندگی اور دوسری طرف خوفناک موت ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ تھوڑی دیر بعد اسے بھی گولی کا نشانہ بنا دیا جائے گا تو اس میں موت کا
हौलनाक शऊर जन्म लेता है, जिसे हेडेगर ने दुनिया में ना होने के इम्कान, द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग देयर का नाम दिया है। ये इम्कान कुछ देर बाद वाकईयत की शक्ल इख्तियार करने वाला है। इस कहानी का मरकजी किरदार मौत के शऊर के मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरता है। एक जगह वो अपने आप से कहता है, मैं मुसर्रत के पीछे दीवाना वार दौड़ता रहा, औरत और आजादी का ताक़ुब करता रहा, लेकिन क्यों? मैं स्पेन को आजाद कराना चाहता था और मार्गल को पसंद करता था। मैं एक नेराजी तहरीक में शामिल हो गया। मैंने जलसाए अवाम में तकरीरें की। मैं हर चीज निहायत संजीदगी से कर रहा था, इस कदर संजीदगी से गोया के मैं लाफानी हूं। आगे चलकर वही किरदार अपनी खुद कलामी जारी रखता है और कहता है, इस वक्त मैंने महसूस किया कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने थी और जो मुझे एक काबिले नफरत झूठ महसूस हुई, इसकी कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए कि वो खत्म हो चुकी थी। मुझे हैरत है कि मैं क्यों कर लड़कियों के साथ घूमता फिरता और हंसता बोलता रहता था। मैं अपनी छोटी सी उंगली से ज्यादा हरकत ना करता अगर मुझे मालूम होता कि मैं इस तरह मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी है, एक बैग की तरह बंद, और इसके बावजूद इसमें हर चीज नातमाम थी। एक लम्हे के लिए मैंने इसकी कदर कीमत मुतय्यन करने की कोशिश की। मैं अपने आप से कहना चाहता था कि ये एक खूबसूरत जिंदगी है, लेकिन मैं कोई राय कायम ना कर सका। यह सिर्फ एक खाका था। मैंने अपना वक्त एक झूठी अब्दियत बनाने में सर्फ किया। मैं कुछ भी ना समझ सका था। मैं किसी चीज से महरूम ना रहा। बहुत सी चीजें थी जिनसे महरूम हो सकता था। मेजानीला का मजा या गर्मियों में काडीज के साहिल पर नहाने का लुत्फ, लेकिन मौत ने इस वाहमे से निजात दिला दी। इस कहानी में सार्तर ने इंसान की आजादी, तशद्दुद, जिंदगी की बेमानवियत और मौत के खौफ का एक खूबसूरत इस्तारा पेश किया है, और इस इस्तारे में कई इस्तारे छुपे हुए हैं। इस कहानी में इंसानी सूरत हाल और वजूदी सूरत हाल को बड़ी गहराई और खूबसूरती से पेश किया गया है। बज़ाहिर तो ये स्पेन की खाना जंगी और आज़ादी पसंद बागियों की एक आम सी कहानी है, जिसमें 3 बागियों को कैद करके इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। मौत की सजा सुनकर तीनों कैदियों पर मुख्तलिफ नौइयत के असरात नुमाया होते हैं। इनके चेहरे मरने से पेशतर ही जर्द हो जाते हैं। एक डॉक्टर रात गए कैद खाने में लाया जाता है, जो अपने आने का मकसद ये बतलाता है कि वो मरने से पहले आखिरी वक्त में इनकी मदद के लिए आया है, ताकि इन्हें सुकून पहुंचा सके और इनकी अजियत में कमी कर सके। लेकिन मौत की दहशतनाक मौजूदगी डॉक्टर के वजूद को बेमायने बना देती है। वो कैदियों को सिगार पेश करता है, लेकिन वो इसकी पेशकश को ठुकरा देते हैं। दीवार के पीछे मौत का कारोबार जारी है। मुजरिमों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी आवाज से कैदियों का वजूद लर्जा बर अंदाम हो जाता है। वो तिफलाना हरकतें करने लगते हैं। जिंदगी की मोहम उम्मीद मौत के बेलिबास वजूद पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, लेकिन मौत का आसेब खौफनाक से खौफनाक तर हो जाता है। वो अपनी भयानक मौजूदगी से इनसे सोचने और महसूस करने की कुव्वत छीन लेती है। वो एक अजीब सी बेहिसी के आलम में अपने आप को पाते हैं। सब होने से कुछ देर पहले कुछ फौजी आते हैं और बारी बारी से 2 कैदियों को ले जाते हैं, जो इनके साथ जाने से बचना चाहते हैं, और बिल आखिर मजबूरन इनके साथ चले जाते हैं, जिन्हें गोलियों का निशाना बना दिया जाता है।
कहानी का मरकजी किरदार इन आवाजों को सुनता है और इस सूरत हाल में जो सरतासर वजूदी है वो कोशिश करता है कि अपने होशो हवास को कायम रखे। फौजी इससे इसके एक मफरूर साथी का पता पूछते हैं। वो पहले तो ला इल्मी जाहिर करता है, लेकिन बाद में उसे मौत की सजा से माफी का लालच दिया जाता है और सोचने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है। वो अपने आप से सवाल करता है कि जब उसे रामो गुरेज का पता मालूम है तो वो इन फौजियों को बतला क्यों नहीं देता। रामो गुरेज से अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। सुबह होने से कुछ देर पहले इसके दिल से इसकी महबूबा कुंचा की मोहब्बत भी खत्म हो चुकी थी, रामू गुरेज की भी, और जिंदा रहने की ख्वाहिश भी मर चुकी थी। इसके अलावा रामू गुरेज की जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती किसी तरह नहीं थी, क्योंकि किसी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। रामू गुरेज की जिंदगी स्पेन के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी और मुफीद थी, लेकिन मैंने स्पेन और इसकी बदनज़मी और इंतशार पर लानत भेजी, क्योंकि अब कोई चीज अहम बाकी नहीं रह गई थी। मैं अपने आप को बचा सकता था, लेकिन मैं शायद जिद्दी था और अब मुझे ये सब बातें मज़ाक़ खेज लग रही थीं। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे मेरे फैसले के बारे में दरियाफ्त किया। मैं कुछ देर इन्हें देखता रहा। बिल आखिर मैंने इनसे कहा, मुझे रामू गुरेज का पता मालूम है। वो कब्रिस्तान में एक गोरकन की झोपड़ी में छुपा हुआ है, लेकिन ये सब एक फरेब था, धोखा था। मैं तो ये देखना चाहता था कि वो जल्दी से खड़े हो जाएं, अपना बेल्ट कसें और बिला की मसरूफियत में ऑर्डर दें।